Very good afternoon to one and all. Today, I, Shivam Trivedi, an assistant professor in Mechanical Engineering Department, stand before you to explain the basic concepts of simple vapor compression refrigeration system. We also know it as VCRS system. In the last class, I have explained you about the basic air refrigeration cycle. What is a basic air refrigeration cycle? If we want to take a recap of it, I would simply tell you that a basic air refrigeration cycle is that cycle in which the working fluid which we are using as a refrigerant is normal atmospheric air, and the entire cooling is being done by the help of natural air or the atmospheric air. But here in vapor absorption, vapor compression refrigeration system, we would be using a refrigerant in place of air. So by using a refrigerant, what is the need of, so here a question arises that what is the need of using a refrigerant in place of air? Priorly we were using air as a refrigerant, but due to some reasons we switched to a certain refrigerant or a group of refrigerants for obtaining a better refrigeration effect. And here a basic question is, what is the need? So here in this PPT, in this lecture, I would be telling you about that what's the need of using other refrigerants, how vapor compression refrigeration system is different from air refrigeration system. Okay, here are the list of contents which I would be explaining you today. First of all, what is simple vapor compression system? Okay, then engine driven vapor heat pump, applications of vapor compression refrigeration system, advantages and disadvantages of vapor compression refrigeration system over air refrigeration system, and comparison between various gas cycles, vapor cycles. Okay, then it would be how many types of, then first of all we are going to study about simple vapor refrigeration system, then we would be going simple vapor compression refrigeration system and its types. There are many types of vapor compression refrigeration system, so we will be telling you in brief about them. Then what is the mechanism? What are the processes that are been involved in the entire mechanism or in the entire cycle of vapor compression refrigeration system? I would be discussing about that. Then what are the processes involved in VCRS? As we have seen in simple air refrigeration system, there are many processes involved in a cyclic manner. So similarly in VCRS system also there are many processes involved in this system but in a cyclic manner. Okay, then I would be showing you a layout of simple vapor compression refrigeration system. Then the most important thing is, if we are studying a system, okay, first of all understand this, if we are studying any system or any thermodynamic device, then we would be studying about its basic properties. Okay, we would get the results from it, we'll get the outcome that if we have changed the refrigerant in place of air, we are using normal refrigerant or advanced refrigerant, then what are its properties, what COP value, coefficient of COP would it yield. Okay, so here, but the entire analysis has been based upon, in thermodynamics, entire analysis is based upon PV diagram, TF diagram and pH diagram, pressure versus volume diagram, temperature versus entropy diagram and pressure versus enthalpy diagram. Okay, so here all the processes that are been taking place would be explained on a pressure enthalpy diagram with the help of pressure enthalpy chart, how to see a pressure enthalpy chart, how to draw a pressure enthalpy chart. Okay, I would be telling about that, and at last I would be explaining about the coefficient of performance. What are the results? Currently I don't know what are the results. Okay, but after studying this topic, we would come to a conclusion that what is the value of COP that vapor compression refrigeration cycle is yielding, whether it is higher or lower as compared to simple air refrigeration cycle, in which air was used as a working fluid. But in this cycle, some refrigerants or a group of refrigerants or a group of halocarbon freon group refrigerants would be used. So now here I begin. See, a simple vapor compression refrigeration system is an improved type of air refrigeration system
in which a suitable working substance termed as refrigerant is used. So the most common term that we came to know from the definition is as surface as a certain term refrigerant is used. Means we are not using air as a refrigerant. Air is not used as a refrigerant. Atmospheric air is not used as a refrigerant in this type of cycle. Okay, we would be using a certain type of refrigerant. In Hindi, if I would like to explain you, I would say कि हम प्रशीतक के तौर पर वातावरण की वायु का इस्तेमाल नहीं करेंगे. इसमें हम एक प्रशीतक का इस्तेमाल करेंगे. वो प्रशीतक हमारा हेलोकार्बन भी हो सकता है, हाइड्रोकार्बन भी हो सकता है, इनऑर्गेनिक भी हो सकता है. ठीक है, फ्रियॉन फैमिली का भी डेरिवेटिव हो सकता है. तो वो हमें देखना पड़ेगा कि हम आगे जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे हम पता करेंगे कि कौन सा प्रशीतक, कौन सा रेफ्रिजरेंट किस रेफ्रिजरेटर में यूज होता है. डोमेस्टिक पर्पस, घरेलू उपयोग के लिए हम जो प्रशीतक यूज करते हैं रेफ्रिजरेटर में, वो कौन सा होता है. औद्योगिक क्षेत्रों में और आइस स्टोरेज प्लांट में और कोल्ड स्टोरेज में जो हमारा प्रशीतक यूज होता है कूलिंग कराने के लिए, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए, प्रशीतन प्रभाव प्रोड्यूस करने के लिए, उसके लिए कौन सा प्रशीतक इस्तेमाल करते हैं, उसकी क्या प्रॉपर्टीज होती है, वो किस साइकिल पे काम करता है, क्या उसकी वर्किंग साइकिल है, किस सिद्धांत पे आधारित है, इसके बारे में हम सब सीखेंगे इस वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में. आगे बढ़ते हैं. इन्होंने एक नई चीज बताई इन्होंने सिस्टम में, इट कंडेंस्ड एंड इवेपोरेट्स एट टेम्परेचर एंड प्रेशर्स क्लोजेस्ट टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. साहब बात यहां पे बिल्कुल साफ है. इट का मतलब ये रेफ्रिजरेटर की बात, रेफ्रिजरेंट की बात कर रहे हैं जो हमारा प्रशीतक है. आपको हम शायद पिछली क्लास में बता चुके हैं कि जब हम नॉर्मल एयर को ऐसा रेफ्रिजरेंट ले रहे थे, एक प्रशीतक के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे, तो वो एयर हमारा क्या कर रही थी, एयर हमारा कूलिंग इफेक्ट तो प्रोड्यूस कर रही थी, अपनी हीट लूज करके वो हमें कूलिंग इफेक्ट तो दे रही थी, लेकिन बदले में एक रेफ्रिजरेटर के कंप्रेशर के बाद जब हमारा कंडेंसर में जाता है, कंडेंसर जो हमारा हीट रिलीज करता है वो भी तो एक रेफ्रिजरेंट एब्जॉर्ब करता है. इसी प्रकार हम इस सिस्टम में जो हम रेफ्रिजरेंट यूज कर, वही बात है कि हमें अगर हम याद करें अपनी पिछली क्लास को, तो हमने बोला था, आपको याद होना चाहिए कि इवेपोरेटर को साहब हम हमेशा वहां पे लगाते हैं एक रेफ्रिजरेटर में जहां पे हमें रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट या कूलिंग इफेक्ट चाहिए होता है. रेफ्रिजरेटर में आपने देखा होगा, आप रेफ्रिजरेटर को जैसे ही पावर देते हो, आपको यह चीज पता होनी चाहिए कि रेफ्रिजरेटर हमारा पावर कंज्यूमिंग डिवाइस है, इसको ऊर्जा चाहिए काम करने के लिए. जैसे आपका हीट पंप एक पावर प्रोड्यूसिंग डिवाइस है, इसी प्रकार से हम हीट इंजन है आपका, वो पावर प्रोड्यूसिंग डिवाइस है, वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस है, वो आपको कार्य देता है. लेकिन एक रेफ्रिजरेटर कभी आपको कार्य नहीं देता, वो आपसे ऊर्जा लेता है. और यू ऑल नो दैट पावर, द टेंडेंसी टू डू एनी वर्क, कार्य करने की क्षमता को हम पावर कहते हैं. तो आप इलेक्ट्रिक पावर देते हो एक रेफ्रिजरेटर को, जैसे ही रेफ्रिजरेटर को साहब इलेक्ट्रिक पावर मिलता है, रेफ्रिजरेटर काम करना शुरू करता है और धीरे धीरे सब कुछ समय के अंतराल में उसमें कूलिंग इफेक्ट आने लगता है, जिससे कि जो हमें चाहिए होता है ताकि हम अपने फूड प्रिजर्वेटिव को एक रेफ्रिजरेटर में स्टोर कर सकें. सिमिलरली समझिए. लेकिन जैसे जैसे आप पावर दे रहे हो, पावर तो कंटिन्यूस दे रहे हो, लेकिन जैसे जैसे उसमें कूलिंग इफेक्ट स्टार्ट हो रहा है, कूलिंग इफेक्ट ऑल ऑफ सडन तो स्टार्ट होता नहीं है, धीरे धीरे स्टार्ट होता है. उसी दौरान अगर कूलिंग हो रही है, आपको भी पता है कि हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम द कंसंट्रेशन ऑफ हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर. ओके, हमेशा हायर कंसंट्रेशन के रीजन से लोअर कंसंट्रेशन के रीजन पे हमारा हीट ट्रांसफर फ्लो होता है और इसी पे हमारा टेम्परेचर का सिद्धांत आधारित है. ठीक है, जीरोथ लॉ के हिसाब से अगर हम थर्मोडायनेमिक्स की बात करें तो यहां पे देखिए, हमारा अगर कूलिंग हो रही है रेफ्रिजरेटर के अंदर, तो रेफ्रिजरेटर भी तो कुछ हीट लूज कर रहा होगा ना. कूलिंग तो तभी होगी जब अगर आपको ठंड के मौसम में आपने अक्सर देखा होगा कि आपको ठंड लगती है तो यू रब योर बोथ द हैंड्स इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द हीटिंग इफेक्ट इन योर बॉडी. तो आपकी बॉडी भी तो देखिए ना हीट को लूज कर रही है.
आपको हीटिंग चाहिए, आप दोनों हाथ रब करते हो तो आपकी भी तो बॉडी से हीट लॉस हो रहा है ना। इसी प्रकार से अगर हमें कूलिंग इफेक्ट चाहिए एक रेफ्रिजरेटर में, तो रेफ्रिजरेटर भी ऊष्मा को रिलीज करेगा, हीट लॉस होगा। वो किसके माध्यम से होगा? वो साहब होगा कंडेंसर के माध्यम से। और जिस प्रक्रिया से ये होगा उस प्रक्रिया को कहेंगे कंडेंसेशन। क्या होता है ये आगे बताएंगे। सेम प्रोसेस है, सेम विधि है जो हमारा एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम में होता था। क्या था कि हमारा कंडेंसर क्या करता था, कंप्रेशर पहले हमारा, हम एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम को एक बार रिवाइज करा दे रहे हैं, आपको एक ब्रीफ आइडिया दे रहे हैं 2 मिनट का, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आप क्या करते थे कि कंप्रेशर में अपने रेफ्रिजरेंट को भेजते थे, कंप्रेशर उसको कंप्रेस करता था, वॉल्यूम को घटाता था, प्रेशर और टेम्परेचर की मात्रा बढ़ा देता था। आपका क्या होता था, जब वेपर फॉर्म में रेफ्रिजरेंट वेपर फॉर्म में प्रशीतक जाता था तो उसकी प्रेशर टेम्परेचर को बढ़ाता था, कंप्रेशर और वॉल्यूम घटा देता था। इसी प्रकार से हमारा फिर वो कंडेंसर में पास करते हैं। कंडेंसेशन प्रोसेस आप बचपन से पढ़ते आ रहोगे। कंडेंसेशन से अगर हम बात करें तो सिंपल ये मतलब होता है कि किसी सिस्टम से हीट को निकालना। अगर आप कंडेंसेशन प्रोसेस के दौरान उन वेपर रेफ्रिजरेंट की हीट को बाहर एटमॉस्फेयर में एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, तो आप ये भी तो देखो कि वेपर फॉर्म से उसको लिक्विड फॉर्म में बदल रहे हो। आप अगर किसी सिस्टम से हीट रिलीज कर रहे हो तो आप उसको वेपर से लिक्विड में बदल रहे हो। आप देखते हो जब वाटर को बॉईल करते हो तो स्टीम में चेंज होता है, ठीक है। हम कहें कि स्टीम को, और वो स्टीम हमेशा हायर प्रेशर और हायर टेम्परेचर पर रहेगी। आपको शायद पता होगा कि दैट स्टीम हर्ट्स मोर देन अ बॉइलिंग वाटर, ओके। तो अगर हम आपसे कहें कि उस स्टीम को साफ वाटर में कन्वर्ट करिए तो आप कहेंगे हो तो जाएगा, लेकिन इसका स्टीम का जो प्रेशर टेम्परेचर है वो बहुत हाई था, और जो नॉर्मल इसको लिक्विडिफाइड फॉर्म में हम बदलेंगे इससे प्रेशर टेम्परेचर गिरेगा। तो यही काम तो हमारा कंडेंसर कर रहा था, और इस विधि को हम कहते हैं कंडेंसेशन प्रोसेस, ठीक है बेटा। अब देखिए, एक तो हमने कंडेंसेशन बताया। कंडेंसेशन में क्या होता है, हीट का रिमूवल होता है, ठीक है। क्यू रिजेक्शन जिसको हम बोलते हैं, क्यू रिजेक्शन होता है। एक बात समझ में आई, दूसरा समझते हैं। और ये कराता कौन है, ये पूरी साइकिल में देखिए आपको पता होगा, जैसे आपने कैटलिस्ट पढ़ा होगा, ठीक है। कैटलिस्ट क्या करता है, कैटलिस्ट कभी भी स्वतः नहीं जलता है, वो केवल रिएक्शन में टेक पार्ट करता है और रिएक्शन के रेट को या तो बढ़ा देता है या घटा देता है, लेकिन उसका खुद का कभी कंबशन नहीं होता। इसी प्रकार से हमारा जो प्रशीतक है, जो रेफ्रिजरेंट है, ठीक है, ये टेम्परेचर को, हीट को गेन करता है और हीट को लूज करता है, लेकिन अपनी प्रॉपर्टीज में किसी प्रकार का कोई भी चेंज नहीं आने देता है, ठीक है। अब देखिए इवेपोरेटर क्या करेगा आपका। इवेपोरेटर हमने लास्ट क्लास में बताया था हमेशा वहां लगाया जाएगा जहां पे आपको रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, प्रशीतन प्रभाव चाहिए होगा, ठीक है। इवेपोरेटर हम लगाते हैं कंप्रेशर के जस्ट पहले। जहां आपके एक रेफ्रिजरेटर में, डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर की हम बात करें, घरेलू उपयोग के रेफ्रिजरेटर की बात करें, तो आपने देखा होगा जहां आपकी कूलिंग स्टार्ट होती है ना, कूलिंग के लिए ये डिवाइस रिस्पॉन्सिबल है हमारा इवेपोरेटर। इवेपोरेटर क्या करता है, देखिए हमने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि जो हमारा एक्सपेंशन डिवाइस से निकल के रेफ्रिजरेंट आता है, लिक्विड रेफ्रिजरेंट, इवेपोरेटर एक्सटर्नल हीट के माध्यम से उसको और हीट करता है। हीटिंग करने के साथ क्या होता है, जो हमारा प्रशीतक एक्सपेंशन डिवाइस के द्वारा फ्लो होके आता है, वो अपनी ठंडी ऊष्मा फ्रिज के अंदर या रेफ्रिजरेटर के अंदर सप्लाई करता है, और वो हीट होने के कारण जब वो अपनी ठंडी ऊष्मा रेफ्रिजरेटर को दे रहा है, ठीक है, तो वो भी तो हीट कर रहा है ना। तो जब वो हीट करेगा तो पहले एक्सपेंशन डिवाइस से जब वो फ्लो होके बाहर निकला था तो वो लिक्विड स्टेट में था, लेकिन जब उसको आपने एक्सटर्नल एजेंसी के माध्यम से हीट प्रोवाइड की, एक्सटर्नल एजेंट्स के माध्यम से हीट प्रोवाइड की, तो समझिए वो हमारा लिक्विड स्टेट से प्रशीतक किस में बदल जाएगा, रेफ्रिजरेंट आपका वेपर स्टेट में बदलेगा, और उसका प्रेशर और टेम्परेचर भी चेंज हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आप फेस चेंज कर रहे हो। ध्यान से समझना, आप यहां पे किसी चीज का फेस बदल रहे हो, आप वेपर से उसको लिक्विड में ला रहे हो या लिक्विड से वेपर में बदल रहे हो। तो पहले एक्सपेंशन डिवाइस से जब हमारा फ्लो होके आया था, देखो
हमारा कंप्रेसर ने क्या किया था, वेपर रेफ्रिजरेंट था, कंडेंसर को भेजा, कंडेंसर ने ही साहब उसको लिक्विड रेफ्रिजरेंट में बदल दिया। कंडेंसर में हमारी हीट का रिमूवल हुआ। कहां की हीट का रिमूवल हुआ? रेफ्रिजरेटर के अंदर की हीट का रिमूवल हुआ। रेफ्रिजरेटर जो आपका फ्रिज होता है नॉर्मली डोमेस्टिक पर्पस में आप यूज करते हो, घरेलू उपयोग में, उसके अंदर की हीट का आप पूरा रिमूवल कराओगे। वो किस विधि से कराओगे? वो आप कराओगे कंडेंसेशन से। ठीक है साहब, कंडेंसेशन से आपने हीट को रिमूव कराया। हीट रिमूव होने के पश्चात क्या हुआ कि आपका प्रशीतक भी तो बदलेगा। समझना बात को यहां पे ध्यान से। हीट को रिमूव करा रहे हो, प्रेशर आपका जो आपका प्रशीतक था, रेफ्रिजरेंट था, वो वेपर फॉर्म में था, वो अपने आप लिक्विड में बदल गया। ठीक है, जैसे ही वो लिक्विड में चेंज हुआ, वो पास हुआ रिसीवर के माध्यम से, रिसीवर के बाद एक्सपेंशन डिवाइस में, एक्सपेंशन डिवाइस में भी जब आया तो वो लिक्विड स्टेट में रहा। जैसे ही इवेपोरेटर में गया, इवेपोरेटर ने क्या किया? रेफ्रिजरेंट की ऊष्मा को खींचना शुरू किया। अब जब रेफ्रिजरेंट की ऊष्मा को खींचना शुरू करेंगे, रेफ्रिजरेंट तो हमारा पहले से ही ठंडा था, क्योंकि जो रेफ्रिजरेंट हम नॉर्मल रेफ्रिजरेटर्स में यूज करते हैं उनका फ्रीजिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, और जो बॉइलिंग पॉइंट भी होता है ना साहब, वो भी माइनस में होता है, कभी प्लस में वैल्यू नहीं होती है। -33 डिग्री सेंटीग्रेड, फ्रीजिंग पॉइंट -77 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, एयर हमारा नॉर्मली इतना टेम्परेचर नहीं अटेन करती, -77, -33। हम अमोनिया रेफ्रिजरेंट का एग्जांपल आपको लेके बता रहे हैं, 77.8 डिग्री सेंटीग्रेड इसका फ्रीजिंग पॉइंट है। तो आपको क्या लगता है कि आप इतना कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर ले जाओगे कि -77.8 डिग्री सेंटीग्रेड उसमें कूलिंग करा दोगे? नहीं पॉसिबल है। उस केस में क्या होता है कि आप जैसे कंडेंसेशन विधि से आपका प्रशीतक पास करेगा, प्रशीतक हमारा क्या होगा? हीट करेगा, हीट लूज करेगा, सॉरी, हीट लूज करने के साथ साथ वो हमारा वेपर स्टेट से लिक्विड स्टेट में चेंज होके आ जाएगा। जैसे ही हमारा रेफ्रिजरेंट लिक्विड स्टेट में चेंज होगा, ठीक है, वो एक्सपेंशन डिवाइस रिसीवर के माध्यम से कहां जाएगा? इवेपोरेटर में। इवेपोरेटर बाहर की ऊष्मा को एब्जॉर्ब करेगा, एक्सटर्नल एजेंसी के माध्यम से हीट को प्रोवाइड करेगा, और हमारे लिक्विड रेफ्रिजरेंट को फिर से वेपर में बदलेगा। अब आप बताओ, अगर किसी चीज को लिक्विड से वेपर में बदल रहे हो, ठीक है, तरल पदार्थ से वाष्प में बदल रहे हो, तो क्या हीट दे रहे हो ना सिस्टम को? आप तो अपनी तरफ से एक्सटर्नल हीट दे रहे हो। अगर आपको हम कह दें कि वाटर को आपको हीट बॉईल करना है, आप उसको हीट प्रोवाइड करोगे तभी तो वो अपना लिक्विड से वेपर में फेस चेंज करेगा ना, वाष्प में बदलेगा। इसी प्रकार, लेकिन जब वाष्प में बदलेगा तो क्या आपको नहीं लगता कि वाटर भी अपनी हीट लूज करेगा? अब आपका यहां पे प्रशीतक ठंडा था, पहले से कूल स्टेज पे था, लोअर टेम्परेचर पे था। क्या हुआ? आपने प्रशीतक को हीट देना शुरू किया, तो प्रशीतक भी तो अपनी ऊष्मा छोड़ेगा और वो ऊष्मा रिलीज करेगा। तो कैसा है उसका नेचर? वो कोल्ड टेम्परेचर पे है, लोअर टेम्परेचर पे। इवेपोरेटर आपने कहां लगा रखा है? रेफ्रिजरेटर में, जहां पे आपको कूलिंग इफेक्ट चाहिए। तो जैसे जैसे इवेपोरेशन प्रोसेस से आपका रेफ्रिजरेंट प्रशीतक हीट होना शुरू होगा, वैसे वैसे वो अपनी ऊष्मा छोड़ेगा और आपके रेफ्रिजरेटर के अंदर कूलिंग इफेक्ट स्टार्ट करेगा। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। The refrigerant used does not leave the system, but it is circulated throughout the system alternately condensing and evaporating। जो बात मैंने आपको बताई थी साहब वही है यहां पे, कि कभी भी रेफ्रिजरेंट हमारा जो प्रशीतक होता है वो सिस्टम को, वो इस साइकिल को नहीं, इस साइकिल से बाहर नहीं निकाला जाता है। वो पूरी साइकिल में केवल दो ही प्रक्रियाएं करता है, या तो इवेपोरेट करेगा, वेपर फॉर्म में बदलेगा, या लिक्विड में रहेगा। वो कभी सॉलिड नहीं होता है, क्योंकि उसका फ्रीजिंग पॉइंट इतना हाई है कि वो सॉलिडिफाई नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो वो क्या करता रहेगा? या तो लिक्विड में रहेगा या तो वेपर फॉर्म में जाएगा। लिक्विड में किस में रहेगा? लिक्विड में हमारा बनाएगा कंडेंसर। ये याद कर लीजिएगा कि कंडेंसेशन प्रोसेस में ही हमारा रेफ्रिजरेंट वेपर फॉर्म से लिक्विड में चेंज होता है और हीट का रिमूवल होता है, ही ऊष्मा रिलीज होती है बाहर। ठीक है, दूसरी चीज, दूसरा ये कब फेस चेंज करेगा? दूसरा करेगा इवेपोरेशन में। इवेपोरेशन प्रोसेस में क्या होगा? एक साइकिल में, रेफ्रिजरेशन साइकिल में, नॉर्मली हमारा प्रशीतक
लिक्विड से वाष्प में बदलेगा, और जब लिक्विड से वाष्प में बदलेगा तो प्रशीतक अपनी ऊष्मा रिलीज करेगा, और प्रशीतक जो रेफ्रिजरेंट है वो पहले से ही ठंडी अवस्था में, कोल्ड स्टेट में है, जो लोअर टेम्परेचर पे, तो वो धीरे धीरे रेफ्रिजरेटर को कूलिंग प्रोवाइड करना स्टार्ट करेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि कूलिंग बहुत हाई रेट पे, कूलिंग भी स्टार्ट होती है तो बहुत धीरे स्टार्ट होती है, धीरे धीरे उसका रेट बढ़ता जाता है जैसे ही हमारा रेफ्रिजरेंट का हीटिंग रेट बढ़ता जाता है, और सारा का सारा रेफ्रिजरेंट हमारा लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट में आ जाता है। देखिए, हमने आपसे बताया था एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम में साहब आप एयर को यूज करते हो, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक एयर को, वातावरण एयर को यूज करते हो प्रशीतन प्रभाव पैदा करने के लिए। क्या आजकल के जो रेफ्रिजरेटर्स हैं, जो फ्रिज हैं आपके, आज भी आप उसमें एयर यूज करते हो? ऐसा नहीं है। जो आजकल आपके डोमेस्टिक यूज में या इंडस्ट्रियल पर्पसेस के आप रेफ्रिजरेटर यूज कर रहे हो, उसमें आप यूज करते हो फ्रीऑन गैस या उसके डेरिवेटिव, जिसको हम बोलते हैं साहब F12, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड बहुत अच्छे रेफ्रिजरेंट नहीं माने जाते हैं। क्यों? इनकी भी कुछ अलग प्रॉपर्टीज हैं, कुछ अलग रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है, सीओपी वैल्यू अच्छी नहीं देते हैं और कूलिंग इफेक्ट अच्छा नहीं प्रोवाइड करते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड ये दो ऐसे प्रशीतक हैं जो हमारे पुराने समय में यूज किए जा रहे थे। नॉर्मली हमें बहुत ही लोअर रेट पे कूलिंग करने के लिए, मतलब जहां बहुत कम प्रशीतन प्रभाव चाहिए होता था, वहां ये दो रेफ्रिजरेंट यूज करते थे। आज के समय में हम कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं करते। हाँ, एयर को आज भी ऐसा रेफ्रिजरेंट, आज भी ऐसा प्रशीतक इस्तेमाल करते हैं। कहां इस्तेमाल करते हैं? जब मैंने आपको लास्ट टॉपिक पढ़ाया था तो मैंने बताया था एयरक्राफ्ट कूलिंग सिस्टम में। एयरक्राफ्ट कूलिंग सिस्टम में, एक एरोप्लेन में, एक हवाई जहाज में जो कूलिंग हम करते हैं वो हम करते हैं एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम से। ठीक है, एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम हमारा बेसिकली हम एयरक्राफ्ट में यूज करते हैं, और उसमें हमारा वर्किंग फ्लूइड जो होता है, जो प्रशीतक होता है, वो वातावरण की नॉर्मल एयर होता है। बेल कॉलमन साइकिल पे आधारित है, उस पर बात करेंगे आने वाले लेक्चर्स में। अभी आज इस पे कंसंट्रेट करते हैं। ये देखिए, हमने साहब आपको पहले एक डिफरेंस समझाया था एक इंजन में, और इंजन से बेहतर अगर हम कहें तो हीट इंजन। एक हीट इंजन में हमने आपको डिफरेंस बताया था, एक चीज बताई थी हीट पंप, और एक बताया था रेफ्रिजरेटर। जब हमने आपको थर्मोडायनेमिक्स की सेकेंड लॉ पढ़ाया था, क्लॉसियस और केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट पढ़ाने के बाद हमने आपको बताया था हीट इंजन का कंसेप्ट, हीट पंप और रेफ्रिजरेटर। देखते हैं इस फिगर को। टॉपिक है हमारा इंजन ड्रिवन वेपर कंप्रेशन हीट पंप। हीट पंप की बात कर रहे हैं। अगर इन्होंने हीट पंप की बात करी है, देखिए, तो ये पावर कंज्यूमिंग डिवाइस होगी। सबसे पहले ये आपसे ऊर्जा लेगी, ना कि आपको ऊर्जा देगी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर यहां पे हीट इंजन होता तो हीट इंजन हमारा पावर प्रोड्यूसिंग डिवाइस था। ओके, लेकिन जो हमारा हीट पंप है ये आपका पावर कंज्यूमिंग डिवाइस है। याद रखिएगा इसको, हीट पंप की हम बात करेंगे। हीट पंप और रेफ्रिजरेटर हमारा दोनों पावर कंजम्पशन के आधार पे काम करते हैं। इनका काम है, जब ये आपसे पावर लेंगे, इलेक्ट्रिकल पावर मतलब नॉर्मली एनर्जी का एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, तब ये ऑपरेट करता है। ठीक है, देखते हैं क्या है। एक इंजन है हमारा, वो हमारा कंप्रेशर को डिराइव करा रहा है, कंप्रेशर को पावर दे रहा है। इंजन के माध्यम से हमारा कंप्रेशर चल रहा है। कंप्रेशर जैसे ही हमारा मूव कर रहा है, क्या कर रहा है? कंप्रेशर, अगर हम नॉर्मली यहां पे वर्किंग फ्लूइड रेफ्रिजरेंट को ना लेके, कोई प्रशीतक ना ले, हम नॉर्मली एयर को ले लें। समझिएगा, हम आपको केवल समझाने के लिए ये कंसेप्ट बता रहे हैं। अगर इसमें केवल आप नॉर्मल एयर को ले लें, ऐसा रेफ्रिजरेंट, ठीक है साहब, नॉर्मल एयर को ये इंजन हमारा कंप्रेस करा रहा है। कंप्रेस कराएगा तो दो चीजें बढ़ा देगा। क्या बढ़ाएगा? प्रेशर बढ़ाएगा और टेम्परेचर बढ़ाएगा। वॉल्यूम क्या करेगा? एक इक्वेशन पढ़ी होगी, आइडियल गैस इक्वेशन, PV इज इक्वल टू mRT, शायद आप अवगत हो इससे। अगर हमारा प्रेशर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है कंप्रेशन प्रोसेस के दौरान, तो वॉल्यूम साहब घटेगा। ठीक, वॉल्यूम को घटाया गया, प्रेशर टेम्परेचर बढ़ाया गया।
नॉर्मल एयर। अगर नॉर्मल एयर का प्रेशर टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो एयर हमारी, अगर यहां पे कोल्ड एयर थी, फॉर एग्जांपल अगर हमारी कोल्ड एयर थी, तो कंप्रेस कर रहे हो, प्रेशर बढ़ा रहे हो, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, तो एयर हमारी क्या होगी, और कोल्ड हो जाएगी कि वार्म हो जाएगी। नॉर्मली हम बात करें तो एयर हमारी टेम्परेचर में वृद्धि आएगी, वार्म होगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आप फिर उसका कंडेंसेशन करा रहे हो, इसको कंडेंसर में भेज रहे हो, कंप्रेशर के बाद हमारा कंडेंसर में फ्लो कर रहा है। कंडेंसर में कंडेंसेशन प्रोसेस हुआ। कंडेंसेशन वही प्रोसेस था जो हमने आपको पिछली स्लाइड में बताया था। कंडेंसेशन प्रोसेस में क्या हो रहा है, कंडेंसेशन प्रोसेस में कोई नई चीज नहीं हो रही। कंडेंसेशन प्रोसेस में सिर्फ आप एयर के अंदर की ऊष्मा को बाहर एक्सट्रैक्ट कर रहे हो। अगर आप एयर के अंदर की ऊष्मा को एक्सट्रैक्ट कर रहे हो तो जो वार्म एयर हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर पे थी वो कूल होना शुरू होगी, और वो अपना फेज तो नहीं चेंज करेगी क्योंकि एयर हमारी गैस है, वो गैसियस फेज में ही रहेगी, लिक्विड या सॉलिड फेज में नहीं आ जाएगी। लेकिन हां, आप उसका प्रेशर और टेम्परेचर घटाओगे। ठीक, जब हमारा प्रेशर टेम्परेचर घटेगा तो वो हमारी एक्सपेंशन वॉल्व में पास होगी। एक्सपेंशन वॉल्व का सिंपल प्रिंसिपल ऐसा थ्रॉटलिंग वॉल्व वाला है। जो थ्रॉटलिंग वॉल्व होता था, शायद आपको याद हो, थर्मोडायनेमिक्स में बताया गया था, इस तरह का कुछ वॉल्व होता था और यहां पे बीच में हमारी ओपनिंग होती थी। अगर डिस्चार्ज का प्रिंसिपल पता हो, Q इज इक्वल टू A इंटू वी, एरिया इंटू वेलोसिटी, तो ये प्रेशर बढ़ाता था। और प्रेशर बढ़ने की वजह जब हमारा एक्सपेंशन के थ्रू फ्लो करेगा कोई भी लिक्विड, तो उसमें और कूलिंग डेवलप होगी और इस तरह ये हमारा कूलिंग लेगा, कूलिंग प्रोड्यूस करेगा और हीट को रिलीज आउट करेगा। ठीक है, ये नॉर्मल हमारा एक वर्किंग प्रिंसिपल था जो हमने आपको एक इंजन के माध्यम से बताने की यहां कोशिश करी। और ये कोई नया सिद्धांत नहीं है, ये वही सिद्धांत है जो हमने एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम में आपको बताया था। ठीक है, आगे अभी बात करते हैं कि हमारा सिंपल वेपर रेफ्रिजरेशन सिस्टम कैसे काम करता है, उसको देखिएगा। चलिए बात करते हैं एप्लीकेशन कहां होता है हमारा वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम को हम कहां पे इंप्लॉय करते हैं, कहां पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये पढ़ने की जरूरत इतना नहीं है क्योंकि हम आपको पहले ही बता चुके हैं, जैसे ही लेक्चर स्टार्ट हुआ था कि साहब वेपर रेफ्रिजरेशन कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम को आजकल हम बहुत सारे पर्पस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। वो क्या पर्पस है, वो है आपके इंडस्ट्रियल पर्पस, मतलब औद्योगिक क्षेत्रों में इस्तेमाल करना। ठीक है, डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर में इस्तेमाल करना, घरेलू उपयोग में जो आपके रेफ्रिजरेटर आप यूज करते हो प्रशीतन प्रभाव के लिए, उसमें हमारा इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो ये अब हमारा इस सिस्टम को क्यों जरूरत पड़ी आने की, हाँ ये समझो। पहले हम एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम पढ़ रहे थे, एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम से हमारा एयरक्राफ्ट में कूलिंग हो रही थी। ठीक है भाई, अब हमें यह समझने की जरूरत है कि कूलिंग तो हमारी एयर भी करा रही थी, तो हमें क्या आवश्यकता पड़ी कि हमें सिंपल वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम को पिक्चर में लाना पड़ा और पढ़ने की आवश्यकता पड़ी, एडॉप्ट किया। और क्या इसके कुछ और रिजल्ट निकल के आए थे, क्या ये एडवांस फॉर्म था क्या उसका एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम का? तो हां साहब, ये एडवांस फॉर्म है एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम का। जो सीओपी वैल्यू आती, जो निष्पादक गुणांक की वैल्यू आती है, वो कहीं बहुत ज्यादा यील्ड करता है। अगर हम कह रहे हैं आपसे कि सीओपी की, ध्यान से देखिए बोर्ड पे, अगर हम आपसे कह रहे हैं सीओपी की वैल्यू ये हाई यील्ड कर रहा है, तो ये क्या यील्ड ज्यादा कर रहा है, ये रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, प्रशीतन प्रभाव ज्यादा पैदा कर रहा है। मतलब अगर लेमन लैंग्वेज में समझे तो कूलिंग इफेक्ट इसका ज्यादा है। ये किसी भी केबिन को, किसी भी क्लोज्ड सरफेस को में कूलिंग, प्रशीतन की मात्रा, कूलिंग का रेट बढ़ा के दे रहा है अगर आप वीसीआरएस सिस्टम को एडॉप्ट करते हो। लेकिन वीसीआरएस सिस्टम में मेन चीज देखो, वर्किंग पूरे सिस्टम की शायद उसी प्रकार है। एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल में कुछ डिवाइसेस अलग लगती थी, ठीक है, जैसे एक्सपेंशन वॉल्व लगता था, एक्सपेंडर लगता था, उनकी बात अलग थी, उसमें डिवाइसेस कुछ अलग यूज थी। लेकिन कूलिंग तो वो भी कर रहा था ना, वो जो कूलिंग कर रहा था वो कम मात्रा में कर रहा था। और जो हमारा वीसीआरएस साइकिल है, ये हमारा कूलिंग ज्यादा मात्रा में करके देता है, प्रशीतन प्रभाव ज्यादा होता है। लेकिन डिपेंड ये करता है कि आप कौन सा प्रशीतक इसमें इस्तेमाल कर रहे हो। ठीक है,
वहां पे आप एयर यूज कर रहे थे, यहां अलग अलग प्रकार के प्रशीतक यूज करोगे। अभी हमने आपको नाम बताया था, अमोनिया हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, लेकिन कार्बन और सल्फर डाइऑक्साइड हम पहले यूज करते थे। आज के समय में फ्रीऑन 12 फैमिली के मेंबर के डेरिवेटिव्स होते हैं, हेलो कार्बन होते हैं, ठीक है, क्लोरीन, फ्लोरीन होते हैं। लेकिन हां, अगर हम देखें कि इन्वायरमेंट के रिस्पेक्ट से, वातावरण के रिस्पेक्ट से कौन सा अच्छा था, तो एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम अच्छा था। एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम क्यों यूज हुआ, पहली बार कहां यूज हुआ था, हम शायद पिछली क्लास में आपको नहीं बता पाए थे। एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम पहली बार जो यूज हुआ था वो यूज हुआ था शिप्स में, जो कि फ्रोजन मीट कैरी करने का काम करते थे, ठीक है। आजकल जो हम उसको रिप्लेस कर रहे हैं, लेकिन क्यों रिप्लेस कर रहे हैं, वो किसी भी तरह से इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं कर रहा था, ना वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन रिलीज कर रहा था, ना ओडीपी वैल्यू बढ़ा रहा था, मतलब ओजोन लेयर डिप्लीशन रेट की वैल्यू भी नहीं बढ़ा रहा था, और वो किसी तरह नहीं हानिकारक था। लेकिन बस एक कमी थी कि उसकी कूलिंग इफेक्ट हमारा बहुत मिनिमम मिल रहा था, ठीक है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट मिनिमम, वो अच्छा था। एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम हम आज ये कह सकते हैं कि वातावरण के रिस्पेक्ट से एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम अच्छा था। लेकिन जैसे कि आपको पता है कि ह्यूमन बीइंग अपना कंफर्ट कंडीशन देखता है हमेशा, ठीक है, तो अगर कंफर्ट कंडीशन की बात करें और मतलब ह्यूमन की नेचर की, ह्यूमन टेंडेंसी की बात करें, तो हमें यह चाहिए होता है कि कम समय में हमें अधिक से अधिक चीजें उपलब्ध हो जाएं, ठीक है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम वीसीआरएस सिस्टम को लेके आए। वीसीआरएस सिस्टम में बहुत सारी कमियां हैं। वीसीआरएस सिस्टम में जो आप प्रशीतक यूज करते हो, जो रेफ्रिजरेंट यूज करते हो, अगर वो फ्रीऑन 12 फैमिली का डेरिवेटिव आप इस्तेमाल कर रहे हो, नॉर्मल आपको पता होगा एसी में या रेफ्रिजरेटर में कौन सा R22 का नाम सुना है, हेलो कार्बन रेफ्रिजरेंट, हाइड्रोकार्बन, इनऑर्गेनिक, एजियोट्रोपिक, जियोट्रोपिक, आर सीरीज, शायद आपने सुना हो। R22 लिख देते हैं, R22 मतलब आर सिंबल रेफ्रिजरेंट का, 22 इसका नॉमेनक्लेचर है। वो अगले लेक्चर में पढ़ाएंगे कि प्रशीतकों का नामकरण कैसे करते हैं, नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाता है, ठीक है। अगर आजकल हम ये रेफ्रिजरेंट यूज जो कर रहे हैं, ये इनका दुष्परिणाम ऐसा है कि ऐसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन रिलीज कर रहे हैं एटमॉस्फेयर के लिए, जो हमारे ओजोन लेयर को डिप्लीट करती जा रही है, दिन पर दिन खराब करती जा रही है, जिसके कारण सन की अल्ट्रावायलेट रेडिएशन अर्थ सरफेस पे पहुंच रही है, ठीक है। लेकिन हमें तो भैया ह्यूमन कंफर्ट देखना है। ह्यूमन कंफर्ट को देखते हुए हम आगे बढ़े और हम वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम को यूज में लेके आए, ठीक है। इससे हमें फायदा क्या था, हमें लार्ज स्केल में कूलिंग एडॉप्ट हो रही थी, मिल रही थी। कूलिंग का जो रेट था वो ज्यादा अच्छा था। क्यों? क्योंकि आप अच्छी क्वालिटी का प्रशीतक इस्तेमाल कर रहे हो, जिसमें हमारे होमोजीनियस मिक्सचर्स मिले हुए हैं। ध्यान से समझना जो मैंने शब्द बोला, होमोजीनियस। एयर इज अ कॉम्पोजिशन ऑफ 2 और मोर गैसेस। जो नॉर्मल एयर है वो कई गैसों का मिश्रण है, और कई गैसों का मिश्रण अगर एयर है तो उसमें इंप्योरिटीज भी साफ प्रेजेंट होंगी, ठीक है। लेकिन और इसीलिए वो सीओपी वैल्यू कम दे रहा था। यहां देखिए इस रेफ्रिजरेंट में, फ्रीऑन 12 फैमिली के अमोनिया में, क्या अमोनिया में आप इंप्योरिटीज प्रेजेंट कराते हो? क्या इसमें और कोई तत्व मिलता है? सिमिलर काइंड के आपके मॉलिक्यूल्स, एटम्स, कॉम्बिनेशन आप मिलाते हो, ठीक है। होमोजिनियस मिक्सचर होता है हमारे प्रशीतक का, इसलिए ये हमारा जो वैल्यू है सीओपी वैल्यू वो हायर देता है, बस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कहां कहां यूज करते हैं इस पे बात हो चुकी है, ठीक है। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। क्या एडवांटेजेस होते हैं, क्या कमियां हैं? अब देखिए कोई ना कोई सिस्टम आया है, जैसे वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम आप पढ़ रहे हो, इसी प्रकार से बेटा एक वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम भी होता है, ठीक है। वो भी आगे आने वाले लेक्चर्स में बात करेंगे हम उनके बारे में। वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम को हम यूज में लेके आए एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम की तुलना में। क्या इसकी अच्छाइयां हैं, क्या लिमिटेशंस हैं, क्या ड्रॉबैक है, हम थोड़ा देखते हैं इनके बारे में। एडवांटेजेस क्या हैं? स्मॉलर साइज, इट हैज स्मॉलर साइज फॉर गिवन कैपेसिटी ऑफ रेफ्रिजरेशन, ठीक है। इट हैज लेस रनिंग कॉस्ट, इट कैन बी एम्प्लॉयड ओवर अ लार्ज रेंज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है।
कि लार्ज रेंज ऑफ टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर काफी कम हमें ले जाना है तो हम यूज करेंगे, रनिंग कॉस्ट कम है, और कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस जो होता है निष्पादक गुणांक की वैल्यू मतलब रेफ्रिजरेशन इफेक्ट वो काफी ज्यादा निकल के आता है। ये हम पहले ही आपको बता चुके हैं, स्लाइड पढ़ा। लेकिन देखिए दुष्परिणाम क्या होते हैं। द इनिशियल कॉस्ट इज हाई, मतलब इनिशियल कॉस्ट का मतलब है सेटअप कॉस्ट। अगर आप कोई भी सेटअप कर रहे हो तो उसके लिए कॉस्ट हाई है। क्यों? क्योंकि जो हमारे रेफ्रिजरेंट होते हैं वो कॉस्टली हैं, एक्सपेंसिव हैं एज कंपेयर टू नेचुरल एटमॉस्फेरिक एयर। नेचुरल एटमॉस्फेरिक एयर आपको आसानी से अवेलेबल हो जाती है, लेकिन रेफ्रिजरेंट जो होते हैं, अलग अलग कैटेगरी के रेफ्रिजरेंट जो होते हैं, अलग अलग सीरीज के जो रेफ्रिजरेंट हैं, उनके लिए हमें थोड़ा सा ज्यादा पैसा पे करना पड़ता है। ठीक है, आगे देखिए। अगर हमारी एयर लीक हो रही है, ठीक, मान लीजिए पूरी रेफ्रिजरेशन साइकिल चल रही है, पूरी रेफ्रिजरेशन साइकिल के दौरान कंप्रेसर से या कहीं से एयर का लीकेज हो रहा है, तो वो उतनी हानि हमारे सिस्टम को नहीं पहुंचाएगा। लेकिन अगर हमारे प्रशीतक में, जो आप वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में जो प्रशीतक इस्तेमाल कर रहे हो, इसमें जरा सा भी लीकेज होगा तो वो हानिकारक होगा। किस प्रकार? हो सकता है कि आपका जो प्रशीतक वेपर कंप्रेशन में आप यूज कर रहे हो, ठीक है, वेपर कंप्रेशन को वाष्प संपीड़न भी बोलते हैं, ठीक है, वाष्प संपीड़न प्रशीतन प्रभाव। ठीक है, इस केस में क्या होता है, अगर मान लो आप जो प्रशीतक इस्तेमाल कर रहे हो वेपर कंप्रेशन में, अगर वो लीकेज कर रहा है तो हो सकता है कि उसकी प्रॉपर्टीज उस प्रशीतक की ऐसी हो कि वो टॉक्सिक हो। यह भी हो सकता है कि वो फ्लेमेबल हो, जल्दी से आग पकड़ने की क्षमता रखे। क्या एयर में ये प्रॉपर्टीज थी? नहीं। एयर में, एयर के साथ, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक एयर के साथ हम इतनी सारी, अगर लीकेज हो रहा है तो इतना डर नहीं था। लेकिन हां, अगर हम प्रशीतक को यूज कर रहे हैं वीसीआरएस में, तो हमें बहुत ही कॉन्शियसली, बहुत ही सावधानी पूर्वक प्रशीतक को वीसीआरएस में इस्तेमाल करना होता है। ठीक है, अब देखिए, अगर लीकेज हो रहा है, द प्रिवेंशन ऑफ लीकेज ऑफ रेफ्रिजरेंट इज अ मेजर प्रॉब्लम इन वेपर कंप्रेशन। क्योंकि यहां पे जो प्रशीतक है वो आपका लिक्विड फॉर्म में है। लिक्विड फॉर्म में प्रशीतक अगर आपका लीक कर रहा है या लीकेज हो रहा है, तो उसको रोकने के लिए आपको, भाई उसको अगर आपको पहले तो डिटेक्ट करना पड़ेगा, फिर रोकने के लिए आपको पूरा सिस्टम रोकना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कहां से लीकेज हो रहा है, दोबारा रिपेयर एंड मेंटेनेंस कैरी आउट करके तब आप हमारा सिस्टम दोबारा से यूज में ला सकते हो। एयर में नहीं था, नॉर्मल एयर में। क्यों? एटमॉस्फेरिक एयर तो आप सक्शन करते रहो ना, एयर कोई लिमिटेड स्टॉक नहीं है एयर का, एयर तो एटमॉस्फेयर में बहुत सारी मात्रा में प्रेजेंट है। ठीक है, इसलिए एयर के साथ ये प्रॉब्लम नहीं आ रही थी। एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम इस तौर पे बेहतर था वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम की तुलना में। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। कंपैरिजन बिटवीन गैस साइकिल्स एंड वेपर साइकिल। गैस साइकिल और वेपर साइकिल के बीच में एक तुलना क्या होता है? थर्मोडायनेमिक साइकिल्स कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू गैस साइकिल्स एंड वेपर साइकिल। बिल्कुल सही बात है। इन टिपिकल गैस साइकिल द वर्किंग फ्लूइड अ गैस डज नॉट अंडरगो फेज चेंज, कंसिक्वेंटली द ऑपरेटिंग साइकिल विल बी अवे फ्रॉम द वेपर डोम। देखिए, समझने वाली बात है। एक नॉर्मल थर्मोडायनेमिक साइकिल में जो हम फ्लूइड यूज करते हैं, फ्लूइड, लिक्विड और गैस दोनों हो सकता है, वो कभी भी फेज चेंज नहीं करता है। ठीक है, नॉर्मल आपको थर्मोडायनेमिक, अभी हम गैस साइकिल की भी बात नहीं कर रहे हैं, चलिए हम आपसे एक नॉर्मल थर्मोडायनेमिक साइकिल की बात कर रहे हैं। ठीक है, इंजन्स पता है आप लोगों को, एसआई इंजन, सीआई इंजन। ठीक है, एसआई इंजन को पेट्रोल इंजन भी बोलते हैं, सीआई इंजन को हम डीजल इंजन भी बोलते हैं। ठीक है, जो हमारा एसआई इंजन होता है, पेट्रोल इंजन, वो किस पे आधारित है? वो आधारित है ऑटो साइकिल पे। उसकी जो वर्किंग साइकिल है एसआई की, वो है ऑटो साइकिल। और जो सीआई इंजन की वर्किंग साइकिल है वो है डीजल साइकिल, क्योंकि एसआई इंजन हमारा पेट्रोल इंजन है और सीआई इंजन हमारा डीजल इंजन है। ठीक है साहब, अगर हम आपसे कहें कि आपके टू व्हीलर में जो कि पेट्रोल इंजन पे हमारा आधारित है, ठीक है, उसमें हम आपसे पूछें वर्किंग फ्लूइड आप क्या यूज करते हो? कार्बोरेटर अगर आपके चार्ज का मिक्सचर प्रिपेयर कर रहा है तो क्या मिक्सचर होता है? आप कहोगे साहब कुछ नहीं, एयर और फ्यूल का मिक्सचर
कभी बराबर मात्रा में होता है, कभी एयर का मिक्सचर, एयर की मात्रा ज्यादा होती है, फ्यूल की कम होती है, कभी फ्यूल की ज्यादा होती है और एयर की कम होती है। डिपेंड करता है रिच, लीन या स्टाइकियोमेट्रिक, किस प्रकार का मिक्सचर आप सप्लाई कर रहे हो गाड़ी को, व्हीकल को, डिपेंडिंग अपॉन द लोड कंडीशन ऑफ द व्हीकल। कितना भार सहने की क्षमता है उस ऑटोमोबाइल या व्हीकल में, ठीक है। उसी प्रकार से जो हमारी ऑटो साइकिल आप यूज कर रहे थे, नॉर्मल एयर एटमॉस्फेरिक की यूज कर रहे थे, क्या कहीं पूरी साइकिल के दौरान, उसमें भी 4 प्रोसेस हो रहे थे, हमने आपको थर्मो पढ़ाया था, उसमें बताया था, क्या पूरी प्रोसेस में एयर को कहीं वेपर में बदला? एयर को जो वेपर फॉर्म में थी उसको क्या लिक्विड में कहीं बदला गया था क्या? नहीं, ऐसा नहीं था। एयर को हम नॉर्मल एयर, सक्शन स्ट्रोक, कंप्रेशन स्ट्रोक, एक्सपेंशन स्ट्रोक, जिसको पावर स्ट्रोक बोलते हैं, या एग्जॉस्ट स्ट्रोक, ठीक है, चारों स्ट्रोक कैरी आउट करवा लिए थे हमने। पूरा एक स्ट्रोक, एक साइकिल, पिस्टन का मूवमेंट टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर, बॉटम डेड से टॉप डेड सेंटर, ठीक है, सब कुछ कराया। लेकिन जो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक एयर का हमने सक्शन किया था पहले स्ट्रोक में, ठीक है, शुरुआत जहां से साइकिल की हुई थी, ऑटो साइकिल की, वहां पे और एंड में स्कैवेंजिंग स्ट्रोक तक, ठीक है, जहां हमारा एग्जॉस्ट स्ट्रोक जिसको बोलते हैं, वहां पे भी एग्जॉस्ट हमने एयर का ही किया था। एयर ने कहीं भी अपनी फेज नहीं चेंज किया था वेपर से, वो कहीं भी लिक्विड में नहीं चेंज हुई थी। लेकिन जो आपकी ये रेफ्रिजरेशन साइकिल्स होती हैं, एयर कंडीशनिंग साइकिल्स हैं, इसमें हमारा फेज चेंज एयर का होता है, ठीक है। कैसे होता है? एयर का कह रहे, सॉरी, रेफ्रिजरेंट का जो फेज चेंज होता है वो होता है कैसे होता है? वो 2 चीजों से होता है, एक इवेपोरेशन प्रोसेस के दौरान इवेपोरेटर में, और एक कंडेंसेशन प्रोसेस के दौरान कंडेंसर में, ठीक है साहब। आगे बढ़ते हैं। In a vapor compression cycle, the working fluid undergoes phase change and the refrigeration effective due to the vaporization of refrigerant liquid. If the refrigerant is pure substance, then its temperature remains constant. जो अभी मैं आपसे थोड़ी देर पहले बात कर रहा था होमोजीनियस मिक्सचर और हिट्रोजीनियस मिक्सचर की, क्या था कि अगर हमारा एक ही तरह के सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, तो वो होमोजीनियस अलग अलग प्रकार के कॉन्स्टिट्यूएंट से मिलकर अगर प्रशीतक बनाए तो वो हिट्रोजीनियस हो जाएगा। लेकिन अब देखिए यहां पे पढ़ने वाली बात, इफ द रेफ्रिजरेंट इज अ प्योर सब्सटेंस, अगर हमारा प्रशीतक प्योर सब्सटेंस है तो वो किसी भी तरह का हीट ट्रांसफर अलाउ नहीं करेगा, ना हीट एडिशन अलाउ करेगा, ना हीट रिजेक्शन अलाउ करेगा। वो उसका जो टेम्परेचर है, जो तापमान है, मतलब हमारा यह कहने का मतलब है कि इवेपोरेशन प्रोसेस और कंडेंसेशन प्रोसेस, जो हमारी रेफ्रिजरेशन साइकिल चल रही थी, अगर हमारा प्योर सब्सटेंस आप यूज कर रहे हो, जो आपका रेफ्रिजरेंट है वो प्योर सब्सटेंस है, जो होना आज के समय में बहुत नामुमकिन है, लेकिन अगर आप प्योर सब्सटेंस या आइडियल केस की बात कर रहे हैं, जैसे एक आदर्श गैस के हम लोग नियम पढ़ते हैं, उसी प्रकार ही एक आदर्श प्रशीतक की बात कर रहे हैं, अगर आप यूज कर लो तो उस केस में आपका आदर्श प्रशीतक कभी भी नहीं अलाउ करेगा कि किसी प्रकार का टेम्परेचर गेन कर ले या टेम्परेचर लूज कर ले, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, ड्यूरिंग जो नॉर्मल हम रेफ्रिजरेंट यूज करते हैं वो फेज चेंज अलाउ करते हैं, ठीक है, क्योंकि दे आर नॉट द प्योर सब्सटेंसेस। आगे बढ़ते हैं, वही चीजें लिखी हुई है इसमें, वेपर कंप्रेशन साइकिल्स इनटू द वेपर कंप्रेशन सिस्टम, वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम। ये अभी आगे बात करते हैं कि हमारा जो ये वेपर कंप्रेशन सिस्टम है, जैसे हमने आपको बताया वेपर साइकिल कई प्रकार की होती हैं, वेपर कंप्रेशन साइकिल और वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल हो गई, वेपर जेट सिस्टम्स पे आधारित है, ठीक है। इन पे आने वाले लेक्चर से बात करेंगे। अभी हमारा मेन टारगेट जो है, हम जो पढ़ रहे हैं साहब, वो है वेपर कंप्रेशन, वेपर एब्जॉर्प्शन, वेपर जेट सिस्टम, इनके बारे में आने वाले लेक्चर्स में बात करा जाएगा। अभी हम केवल वेपर कंप्रेशन सिस्टम पढ़ रहे हैं। इन्होंने इसमें सिर्फ इतना बताया है कि वेपर पावर साइकिल्स कई प्रकार की होती हैं। देखिए आगे स्लाइड में लिखा है, देखिएगा कितने प्रकार की हमारी वेपर पावर साइकिल्स हैं, उनके ये नाम लिखे हुए हैं। साइकिल विद ड्राई सैचुरेटेड वेपर कंप्रेशन, साइकिल विद वेट वेपर आफ्टर कंप्रेशन, साइकिल विद सुपरहीटेड वेपर आफ्टर कंप्रेशन, साइकिल विद सुपरहीटेड वेपर बिफोर कंप्रेशन, साइकिल विद सब कूलिंग एंड अंडरगोइंग ऑफ रेफ्रिजरेंट, ठीक है साहब। जो हम पढ़ रहे हैं इस टाइम पे, वो हमारा मेन उद्देश्य है सिंपल वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल,
ठीक है, ये कई प्रकार की वेपर कंप्रेशन साइकिल्स के नाम दिए हुए हैं, क्या क्या प्रोसेस टेक प्लेस करते हैं। अब ये आप इसमें देखो लिखा हुआ है ना, सैचुरेटेड, फिर सुपर हीटेड, सब कूलिंग, अंडर कूलिंग। इसमें हमें 4 नई चीजें सीखने को मिलेंगी। क्या है ये? वेपर सैचुरेट हुआ, क्या हुआ आगे बताते हैं। सुपर हीटेड हुआ, सुपर हीट होगा तो शायद हमारा लिक्विड से वेपर में बदलेगा, अभी बताया था। टर्म मैंने सुपर हीटेड नहीं यूज किया था, ठीक है। एक रेफ्रिजरेंट समझिए, अगर इसको मोटे मोटे तौर पे बात करें तो एक प्रशीतक पूरे साइक्लिक या पूरे चक्र में जब हमारा रेफ्रिजरेशन साइकिल में घूमता है, ठीक है, तो वो या तो हीट को रिलीज करेगा, हीट एब्जॉर्ब करेगा, या अपनी हीट रिलीज करेगा, और एंड रिजल्ट हमें ये देगा कि रेफ्रिजरेटर के अंदर कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। लेकिन जब हमारा प्रशीतक पूरी साइकिल में फ्लो करता है तो प्रशीतक की जो फेज होता है वो कई बार परिवर्तित होता है। कैसे परिवर्तित होता है? हमने आपको बोला या तो लिक्विड में चेंज होगा या गैस में चेंज होगा, ठीक है, प्रशीतक आपका। लेकिन एक फेज होता है लिक्विड और गैसेस के भी बीच का। क्या? वो फेज जब हमारा वेपर लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो और लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हो, ठीक है, एक वो भी फेज एग्जिस्ट करता है। उसके बारे में आने वाले लेक्चर्स पे बात करेंगे। देखते हैं मैकेनिज्म क्या होता है। एक नॉर्मल हमारा जो वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम है, इसका मैकेनिज्म क्या है, ये कैसे काम करता है, देखते हैं आगे। पहले इसको समझाने से पहले हम आपको एक वीसीआरएस साइकिल का एक फिगर दिखाएंगे। ये देखिए साहब, ये है पूरा वीसीआरएस सिस्टम जो हम यूज करते हैं नॉर्मल डे टू डे लाइफ में, हमारे हाउस होल्ड डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर्स में, ठीक है, और हमारा इंडस्ट्रियल पर्पस में। पूरी साइकिल क्या होती है, आपने कई बार नाम सुना कि इवेपोरेटर लगा होता है, कंडेंसर होता है, कंप्रेसर लगा होता है, एक्सपेंशन डिवाइस, रिसीवर, कई तरह के उपकरण लगे होते हैं एक रेफ्रिजरेशन साइकिल में। काम ये कैसे करता है देख लो। हमारा सबसे पहले लगा हुआ है इवेपोरेटर, ठीक है। यहां से ये देखिए पॉइंट 1 लिखा हुआ है इवेपोरेटर। इवेपोरेटर ने क्या किया, इवेपोरेटर हम हमेशा वहां पे लगाते हैं, उस जगह पे लगाते हैं रेफ्रिजरेटर में, एक फ्रिज में इवेपोरेटर हमेशा वहां लगाया जाएगा जहां से आपको फ्रिज के अंदर, रेफ्रिजरेटर के अंदर कूलिंग इफेक्ट भेजना है, जहां से कूलिंग इफेक्ट की स्टार्ट कराना है कि आपका प्रशीतन प्रभाव स्टार्ट होना शुरू हो। वो स्टार्ट होता है इवेपोरेटर के माध्यम से, और इसको हम कहते हैं क्यू सप्लाइड। क्यू सप्लाइड मतलब इवेपोरेटर हमेशा हीट सप्लाई करेगा रेफ्रिजरेटर के अंदर। कैसे करेगा वो विधि बताते हैं, और कैसे हीट सप्लाई करेगा, कोल्ड हीट, कोल्ड एयर। इवेपोरेटर टेम्परेचर को ही हम रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट में यूज करते हैं, अभी आगे बताएंगे आपको। इवेपोरेटर में क्या हुआ, इवेपोरेटर ने आपकी जो हीट, जो रेफ्रिजरेंट निकल के आ रहा था, ठीक है, एक्सपेंशन डिवाइस से, वो हमारा यहां से समझिए साइकिल को, एक्सपेंशन डिवाइस से एक रेफ्रिजरेंट निकल रहा है जो हमारा लिक्विड स्टेट में है और वो अत्यधिक ठंडा है, उसका टेम्परेचर काफी लोअर है, वो हमारा जाता है इवेपोरेटर में। इवेपोरेटर क्या करता है, इवेपोरेटर उस प्रशीतक को एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा हीट प्रोवाइड करता है, ठीक है। हीट प्रोवाइड करने के साथ जो हमारा प्रशीतक यहां से जो निकल के आ रहा है, ये देखिए जो प्रशीतक फ्लो हो रहा है, ये हमारा लिक्विड में था, ठीक है, ये हमारा इवेपोरेटर में गया। इवेपोरेटर ने आउटर सरफेस से हीट को लिया, क्यू हीट को लिया, जो रेफ्रिजरेंट यहां लिक्विड स्टेट में इवेपोरेटर में एंटर किया था, उसको इवेपोरेटर ने हीट किया और वेपर में बदल दिया। अगर ये रेफ्रिजरेंट हमारा वेपर में बदल जाएगा बेटा, तो रेफ्रिजरेंट का प्रेशर और टेम्परेचर भी तो चेंज होगा, वॉल्यूम भी तो चेंज हो जाएगा। आपने क्या किया, रेफ्रिजरेंट हमारा पहले से ही इतना ठंडा था, आपने उसको हीट किया। हीट करेंगे आप रेफ्रिजरेंट को, तो रेफ्रिजरेंट जो पहले से इतना ठंडा था वो अपनी हीट लूज करेगा।
अगर जब रेफ्रिजरेंट अपनी हीट लूज करेगा तो वही हीट ये रेफ्रिजरेटर के अंदर, फ्रिज के अंदर सप्लाई करेगा, जिसके हेल्प से कूलिंग इफेक्ट हमारा टेक प्लेस करेगा। ठीक है, अब देखिए तो बदले में क्या हो रहा है, आप तो रेफ्रिजरेटर के अंदर कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड कर रहे हो, आप तो यहां इवेपोरेटर के माध्यम से रेफ्रिजरेटर में कूलिंग भेज रहे हो। जो प्रशीतक था इस पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ये पहले लिक्विड में था, आपने इसको एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा हीट किया। आपका हीट करने का उद्देश्य क्या था, आपने प्रशीतक को क्यों हीट किया, आपने इसलिए हीट किया कि प्रशीतक पहले से ही बहुत ठंडा था, आपको चाहिए था कूलिंग इफेक्ट, आपने प्रशीतक को हीट किया, हीट करने से प्रशीतक ने अपनी ऊष्मा छोड़ दी और अपनी ऊष्मा रिलीज करेगा। तो अगर कोई हीट रिलीज कर रहा है तो कोई एब्जॉर्ब भी तो करती है बॉडी। ठीक है, अगर बॉडी कोई हीट एब्जॉर्ब कर रही तो वो कौन एब्जॉर्ब करेगा, वो करेगा आपका रेफ्रिजरेटर। प्रशीतक हमारा ठंडा था, प्रशीतक का नेचर ठंडा था, आपने हीट करना शुरू किया तो प्रशीतक भी तो अपनी ठंडी हीट को रिलीज करेगा। वो किसको देगा, वो देगा रेफ्रिजरेटर को। किसके माध्यम से देगा, इवेपोरेटर के माध्यम से। प्रशीतक पे क्या प्रभाव पड़ेगा, प्रशीतक हमारा लिक्विड स्टेट में था, वो धीरे धीरे वेपर में बदल जाएगा, वाष्प में बदलेगा। ठीक है, तो जैसे जैसे लिक्विड से वेपर स्टेट में बदलेगा उसका प्रेशर और टेम्परेचर में भी तो वृद्धि आएगी। पीवी इज इक्वल टू एमआरटी। तो जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाते चले जाओगे हीट करके, वैसे वैसे उसका तापमान भी तो बढ़ाओगे। ठीक भाई, आगे बढ़ते हैं। आपका हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे, ठीक है, वेपर फॉर्म में रेफ्रिजरेंट, वाष्प के फॉर्म में प्रशीतक प्रवेश करता है दूसरे प्रोसेस में जहां आपने लगा रखा है कंप्रेशर। कंप्रेशर क्या करता है, कंप्रेशर क्या करेगा, आपके जो प्रशीतक पहले से ही गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट था उसके प्रेशर और टेम्परेचर को और कंप्रेस करेगा और बढ़ाएगा, और प्रेशर और टेम्परेचर को कंप्रेस करके बढ़ाएगा तो तुम्हारे प्रशीतक का वॉल्यूम घटाएगा। ठीक है, आप अगर किसी चीज पे बल लगा रहे हो, किसी फोर्स पे दाब लगा रहे हो, फोर्स लगा रहे हो, तो क्या कर रहे हो, उसका वॉल्यूम भी तो घटा रहे हो कंप्रेशन के दौरान, और उस पे प्रेशर बढ़ाते जा रहे हो, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। इसी प्रकार से तो आपके कंप्रेशन ने क्या किया, कंप्रेशर अगर हम नॉर्मली बात करें तो कंप्रेशर हमारा, आप लोगों ने शायद देखा होगा, मैं डिप्लोमा और बीटेक दोनों लेवल को समझा रहा हूं, शायद बीटेक वाले समझोगे, मैं डिप्लोमा के लिए और नीचे लेवल पे आता हूं। देखिए समझिए बात को, एक नॉर्मल साइकिल वाले की दुकान पे आप सबने देखा होगा कि वो कंप्रेशर रखता है अपने पास, कंप्रेशर में एयर फिल करता है। ठीक है, वो एयर जो कंप्रेशर में फिल होती है, कभी जिस नोजल, जिस पाइप से वो आपके व्हीकल में एयर फिल करता है, ठीक है, कभी उसको प्रेस करके नोजल देखना, एयर अंदर से बहुत तेज प्रेशर के साथ, बहुत हाई वेलोसिटी के साथ बाहर निकलेगी उस नोजल से, जो कंप्रेशर से पाइप हमारा जुड़ा होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि कंप्रेशर का फंक्शन ही ये है, कंप्रेशर आपसे वर्क लेगा, आपसे पावर लेगा, वर्क इनपुट लेगा। ठीक है, और वो जो अपना काम करेगा, क्या करेगा, एयर पे कंप्रेशन फोर्स लगाएगा, कंप्रेस करेगा, दाब लगाएगा, जिसके कारण प्रेशर और टेम्परेचर दोनों बढ़ा देगा, लेकिन वॉल्यूम उस एयर का कम कर देगा। ठीक है, तो एयर बेटा बताना जो हमारी पहले से वेपर फॉर्म में थी, आप उस पर और प्रेशर और फोर्स लगा के और प्रेशर और टेम्परेचर उसका बढ़ाते जा रहे हो, तो एयर तो हमारी सुपर हीटेड हो गई ना, एयर सॉरी रेफ्रिजरेंट जो हमारा है वो हमारा सुपर हीटेड हो गया ना। जो हमारा प्रशीतक आप यूज कर रहे थे वेपर कंप्रेशन साइकिल में, अमोनिया हो, कोई भी रेफ्रिजरेंट हो, फ्रीऑन फैमिली का हो, XYZ कोई भी रेफ्रिजरेंट, अभी रेफ्रिजरेंट का हम नाम ही नहीं ले रहे हैं कौन सा यूज कर रहे हैं, फ्रीऑन मान के चलते हैं, चलो फ्रीऑन अगर हम यूज कर रहे हैं, तो आप अगर फ्रीऑन इस पे यूज कर रहे हो, फ्रीऑन 12 का कोई भी डेरिवेटिव XYZ इस्तेमाल कर लो, उस केस में आप उसको कंप्रेस कराओगे, जो कि पहले से ही वेपर स्टेट में प्रशीतक मौजूद है, और प्रेशर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो और हाई प्रेशर टेम्परेचर पे पहुंच जाएगा। जब वो सुपर हीटेड स्टेट में पहुंचेगा, ठीक है, एक सैचुरेशन का लेवल अटेन हो जाता है ना, कि जैसे एक किसी खाली वेसल में आप वाटर फिल करते जाइए, तो वाटर उस वेसल का एक सैचुरेशन लेवल होता है कि साहब इतना पानी इसमें फिल हो गया, अब इसके ऊपर नहीं फिल हो सकता है। ठीक है, इसी प्रकार एक सैचुरेशन लेवल पे कंप्रेशर हमारी रेफ्रिजरेंट को प्रेशर बढ़ा के और टेम्परेचर बढ़ा के पहुंचा देता है, और वॉल्यूम घटता जाता है। ठीक है, जैसे ही टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ता है। तीसरी स्टेज में देखना क्या होता है, तीसरी स्टेज में हमारा ये कंप्रेशर से निकल के प्रशीतक जो बहुत हाई टेम्परेचर बहुत हाई प्रेशर पे था, वो प्रवेश करता है कंडेंसर के अंदर,
और हमने तुमको बताया था कंडेंसर क्या करता है, कंडेंसेशन की विधि अपनाता है और हीट को रिलीज करता है। देखो हीट एडिशन QA लिखा है, QA को हम QS को QA भी लिख सकते हैं, Q सप्लाइड और Q एब्जॉर्ब। ठीक है, इवेपोरेटर के केस में एब्जॉर्ब मतलब कितना ऊष्मा को, ठंडी एयर को हमारे रेफ्रिजरेटर ने खींचा प्रशीतक से। QR मतलब कितनी हीट हमारी रिलीज हुई। हुआ क्या, जब हमारा प्रशीतक कंडेंसर के अंदर गया, कंडेंसर का काम है किसी चीज को कंडेंस करना, मतलब एक नॉर्मल एग्जांपल वही था कि आपने वेपर को कंडेंस करके लिक्विड में बदल दिया। ठीक है साहब, तो आपने क्या किया, प्रशीतक आपका हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे अंदर आया, कंडेंसर के अंदर जैसे ही हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर पे आया, आपने उसको कंडेंस किया। कंडेंस कैसे किया, उससे हीट खींचना शुरू की। अगर आप किसी भी मटेरियल से हीट को बाहर निकालोगे तो उस केस में क्या होगा, कूलिंग आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, हम आपसे कहें कि आप बॉइलिंग वाटर स्टीम के को कवर कर दो किसी भी सरफेस से, ठीक है, तो कवर करोगे तो क्या होगा, स्टीम को बाहर एटमॉस्फेयर में ना रिलीज होने दो, तो स्टीम धीरे 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 लिक्विड फॉर्म में आने लगेगी, तरल पदार्थ की फॉर्म में आ जाएगी। ठीक है, वेपर फॉर्म हमारा लिक्विड फॉर्म में बदलेगा। इसी प्रकार अगर ये प्रशीतक हमारा जो कि कंडेंसर में आ रहा है, तुम क्या कर रहे हो, इसको कंडेंसर में हीट को रिलीज करा रहे हो। ठीक है, प्रेशर और टेम्परेचर, इस केस में ध्यान रखना प्रेशर और टेम्परेचर दोनों कम होते हैं कंडेंसेशन प्रक्रिया में। तो जो हाई प्रेशर पे हाई टेम्परेचर पे यहां से हमारा वेपर रेफ्रिजरेंट निकल रहा था, वो कंडेंसर में आके साहब बदल गया लिक्विड रेफ्रिजरेंट में। अब अगर कोई चीज वेपर से, वाष्प से लिक्विड में बदल रही, तरल पदार्थ में बदल रही है, तो वो ऊष्मा छोड़ेगी ना, रिलीज करेगी ना अपने अंदर की हीट को। तो वो हीट वही जो, अब ये हीट कंडेंसर नहीं रिलीज कर रहा है, कंडेंसेशन प्रक्रिया के दौरान प्रशीतक रिलीज कर रहा है हीट। ये ध्यान रखना हमेशा, जो प्रशीतक हमारा हीट लेके चला था नीचे शुरुआत से, वो अपनी हीट रिलीज कर रहा है। जब प्रशीतक अपनी हीट रिलीज करेगा साहब, तो ध्यान से समझिएगा, यहां पे प्रेशर और टेम्परेचर भी कम हो जाएगा। प्रेशर पहले की तुलना में, कंप्रेसर से जो हीट निकली थी उसकी तुलना में इस पॉइंट पे तो प्रेशर टेम्परेचर कम रहेगा, और हमारा प्रशीतक का स्टेट भी चेंज होगा, लिक्विड स्टेट में होगा। तो पूरी साइकिल में हमने क्या देखा कि साहब ना कंप्रेसर में हीट का हम ट्रांसफर कराते हैं, ना हीट एब्जॉर्प्शन होता है, ना हीट रिजेक्शन होता है, केवल दो जगह होता है। एक इवेपोरेटर में होता है हीट एब्जॉर्प्शन, इवेपोरेटर आपसे ऊष्मा लेता है रेफ्रिजरेटर को ठंडा करने के लिए, प्रशीतन प्रभाव देने के लिए, और कंडेंसर आपकी ऊष्मा को, प्रशीतक की ऊष्मा को रिलीज करता है बाहर। ठीक है, ठीक भाई, आगे बढ़ते हैं। जब लिक्विड रेफ्रिजरेंट हमारा पास होता है, यहां ध्यान से देखो, एक्सपेंशन डिवाइस से। एक्सपेंशन डिवाइस एक नोजल की तरह होती, दो नोजल दिख रहा है ना आपको, ये प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ाने का काम करता है। जहां प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ाएगा तो वो लिक्विड रेफ्रिजरेंट रहेगा लिक्विड स्टेट में, लेकिन यहां की तुलना में, पॉइंट नंबर 3 की तुलना में पॉइंट 4 पे थोड़ा सा प्रेशर और टेम्परेचर हमारा इंक्रीज करेगा, और रेफ्रिजरेंट हमारा लिक्विड स्टेट में होता हुआ दोबारा से इवेपोरेटर में प्रवेश करेगा। ये इवेपोरेटर फिर क्या करेगा, इवेपोरेटर एक्सटर्नल हीट सप्लाई करेगा, जो लिक्विड, जो रेफ्रिजरेंट यहां पे कंडेंसर में लिक्विड में बदल गया था, वो इवेपोरेटर के एंट्री पॉइंट तक लिक्विड स्टेट में ही रहेगा, और जब लिक्विड में रहेगा वो इवेपोरेटर के एंट्री पॉइंट तक, तो इवेपोरेटर फिर से हीट प्रोवाइड करेगा एक्सटर्नल सोर्स के दौरान, एक्सटर्नल सोर्स के थ्रू, और हमारे प्रशीतक को वेपर में बदलेगा, और फ्रिज के अंदर, रेफ्रिजरेटर के अंदर प्रशीतक की ऊष्मा को एब्जॉर्ब करते हुए रेफ्रिजरेशन इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। यह पूरा एक साइक्लिक मैनर में, एक चक्र के फॉर्म में चलता रहता है। ठीक है, और इसमें मुख्य योगदान किसका है, मुख्य योगदान है आपका रेफ्रिजरेंट या प्रशीतक, कौन सा रेफ्रिजरेंट और प्रशीतक तुम इस्तेमाल कर रहे हो, पूरा रेफ्रिजरेशन प्रशीतक प्रभाव पैदा करने के लिए एक घरेलू और औद्योगिक क्षेत्र में लगा हुआ रेफ्रिजरेटर पे। ठीक है, देखिए ये वही ब्लॉक डायग्राम है जो हमने आपको समझाया है अभी, कि कैसे हमारा गैस कंप्रेसर में जाती है, कंप्रेसर से कंडेंसर में, कहां पे स्टेट चेंज होता है लिक्विड में,
कहाँ पे इवेपोरेटर में क्या होता है, एक्सपेंशन डिवाइस लगी है, इवेपोरेटर में हीट रिमूवल प्रोसेस होता है। आप क्या करते हो, एक्सटर्नल सोर्स के दौरान हमारी हीट प्रोवाइड करते हो। अभी हमने कुछ देर पहले आपको बताया था कि सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, वेट वेपर, ड्राई वेपर, ये कुछ नाम लिए थे। देखिए होता क्या, जब हमारा इवेपोरेटर से कंप्रेसर में हीट फ्लो करती है तो वही प्रोसेस है, वेपर फॉर्म में रेफ्रिजरेंट होता है, उसको हम कंप्रेसर में भेजते हैं, प्रेशर टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ठीक है। फिर कंडेंसर में आया, कंडेंसर में देखिए लिखा हुआ हीट रिजेक्टेड टू, हीट रिजेक्शन होता है, क्यूआर होता है। इन्होंने कूलेंट लिखा है, कूलेंट का मतलब आपका वही है प्रशीतक, ठीक है। कंडेंसर से हमारा कूलेंट आया, एक्सपेंशन डिवाइस, एक्सपेंशन से फिर से, अब कहां कहां हीट रिमूव हो रही है, इवेपोरेटर। हीट रिमूवल का मतलब उल्टा मत समझ लीजिएगा, इवेपोरेटर के माध्यम से रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक की हीट रिमूव हो रही है। इवेपोरेशन प्रोसेस में प्रशीतक हीट लूज कर रहा है, तभी तो रेफ्रिजरेटर आपका हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। अगर हम यहां से कहें तुमसे कि कंडेंसर में हीट का रिमूवल हो रहा है, ठीक है, कंडेंसर हमारा क्या कर रहा है, हीट को रिमूव कर रहा है। अगर हीट को रिमूव कर रहा है तो कहीं ना कहीं हीट एब्जॉर्ब भी तो करा रहा होगा, क्योंकि हीट ट्रांसफर दोनों तरह से टेक प्लेस करता है। अगर कहीं हीट रिमूव हो रही तो कहीं हीट एब्जॉर्ब भी हो रही होगी, ठीक है। ये वही पूरा प्रोसेस है जो हमने अभी आपको पीछे स्लाइड में दूसरे डायग्राम के माध्यम से समझाया था। अब टेक्निकली देख लेते हैं कि जो प्रोसेस हमारे थे 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 1 से 2 हमारा कैसा था, लो प्रेशर लिक्विड रेफ्रिजरेंट, ठीक है। इन द इवेपोरेटर एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम इट्स सराउंडिंग, सराउंडिंग मतलब एक्सटर्नल सोर्स, मैंने बोला था वही लिखा हुआ है यहां पे। सराउंडिंग मतलब एक्सटर्नल सोर्स, एक्सटर्नल एजेंसी से इवेपोरेटर हीट एब्जॉर्ब करेगा, यूजली एयर, वाटर और अदर सोर्सेस से, ठीक है। या आप एक्सटर्नल सोर्स में हीटर का भी, ब्लोअर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। क्या करोगे, स्टेट चेंज होती है हमारे रेफ्रिजरेंट की, लिक्विड से गैस में बदलता है। कौन स्टेट चेंज करता है, प्रशीतक स्टेट चेंज करता है, लिक्विड से गैस में, वेपर फॉर्म में आता है। एंड एट द इवेपोरेटर एग्जिस्ट एट स्लाइटली सुपर हीटेड, और हमारा जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट होता है वो सुपर हीटेड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। प्रोसेस 2 से 3, 2 से 3 हमारा क्या प्रोसेस है। अब मैं थोड़ा सा फास्ट बढ़ूंगा क्योंकि ये वही चीजें हैं जो मैंने अभी आपको पूरा डायग्राम में समझाया है, तो थोड़ा सा स्पीड अप करूंगा, ठीक है। प्रोसेस 2 से 3 हमारा क्या लगा हुआ था, कंडेंसर लगा था साहब। कंडेंसर क्या, कंप्रेसर क्या कर रहा था, कंप्रेसर हमारा प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ा रहा था। एंटर्स इनटू द कंप्रेसर, सुपर हीटेड वेपर। सुपर हीटेड कहां से है, इवेपोरेटर के, इसको लिख लेना या ध्यान रखना, इवेपोरेटर के एग्जिट से निकलने वाली, इवेपोरेटर के एग्जिट पॉइंट से निकलने वाली जो हमारा रेफ्रिजरेंट होगा वो हमारा सुपर हीटेड वेपर के फॉर्म में होगा। ये ध्यान रखिएगा, ये हमारा जो सुपर हीटेड वेपर लिखा है, ये सुपर हीटेड वेपर किसी गैस का नहीं होगा, ये हमारा प्रशीतक होगा सुपर हीटेड स्टेट में। कब होगा, जब इवेपोरेटर के बाहर निकल के और निकलेगा और कंप्रेसर में प्रवेश करेगा। कंप्रेसर में जैसे ही हमारा प्रशीतक प्रवेश करता है क्या होता है, इसका प्रेशर बढ़ जाता है, और हमारी थर्मो की लॉ कहती है कि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ेगा। द टेम्परेचर विल ऑल्सो इंक्रीज, वही बात लिखी हुई है, ठीक। बिकॉज द प्रोपोर्शनल PV इज इक्वल टू MRT, कंप्रेशन प्रोसेस इज ट्रांसफर्ड इनटू द रेफ्रिजरेंट। ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। प्रोसेस 3 to 4, प्रोसेस 3 to 4 हमारा कैसा प्रोसेस है, ये हमारा प्रोसेस है कंडेंसेशन का। कंडेंसेशन में हम क्या करते हैं, रेफ्रिजरेंट के अंदर की ऊष्मा को बाहर निकालते हैं, तो प्रेशर में और टेम्परेचर में दोनों में गिरावट आती है। देखिए, द हाई प्रेशर सुपर हीटेड गैस पासेस फ्रॉम द कंप्रेसर इनटू द कंडेंसर, कंप्रेसर से निकल कंडेंसर में पास करेगी। जब हमारी कंडेंसर से निकलेगी, कंप्रेसर के आउटपुट से निकलने वाला प्रशीतक हमारा सुपर हीटेड गैस के फॉर्म में होगा। क्यों, क्योंकि वो खुद वेपर में चेंज हो चुका है, उसका प्रेशर और टेम्परेचर इवेपोरेटर से निकलने के पश्चात इतना हाई हो गया है कि अब वो सुपर हीटेड स्टेट में पहुंच चुका है। मतलब ये समझ लीजिए, जो प्रशीतक है बहुत हाई टेम्परेचर और प्रेशर में एग्जिस्ट करता है, उससे ऊपर उसका टेम्परेचर और प्रेशर नहीं बढ़ाया जा सकता। एक लिमिट पॉइंट समझ लीजिए, एक एंड पॉइंट समझ लीजिए अपने समझने के लिए। अभी आप, ये सुपर हीटेड गैस हमारा कहां से बनेगा, ये हमारा कंप्रेसर के एग्जिट से बनेगा। जब कंप्रेसर के एग्जिट से साहब हमारा ये वेपर पास होता है तो किसमें जाता है, ये जाता है हमारा कंडेंसर में। कंडेंसर क्या करता है,
कंडेंसर कूलिंग का काम करता है, कंडेंसेशन की विधि अपनाता है, कूलिंग करेगा सुपर हीटेड गैस को, तो क्या होगा, लिक्विड में परिवर्तित कर देगा। पूरी बात देखिए ये लिखी हुई है, कन्वर्ट्स द सुपर हीटेड गैस बिफोर इट इज टर्न बैक इनटू द लिक्विड। ठीक है, कूलिंग का प्रोसेस एब्जॉर्ब करेगा और हमारी सुपर हीटेड गैस को लिक्विड में चेंज कर देगा। क्लियर है? ओके, आई वाज डिस्कसिंग अबाउट द प्रोसेसेस इन्वॉल्व्ड इन वीसीआरएस साइकिल। क्या प्रोसेस था हमारा लास्ट में मैंने डिस्कस किया था कि जब हमारा रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर से निकल के कंडेंसर में जाता है, और कंडेंसर में क्या होता है कि जो कंप्रेसर के एग्जिट से सुपर हीटेड गैस के फॉर्म में रेफ्रिजरेंट बदल जाता है, वो हमारा कंडेंसर में जाके कंडेंसर के इनपुट से जाता है सुपर हीटेड गैस के फॉर्म में, और एग्जिट जो निकलता है वो लिक्विड फॉर्म में। मतलब कंडेंसर के माध्यम से हम हीट का रिमूवल करा रहे हैं। आगे देखते हैं। द कूलिंग फॉर दिस प्रोसेस इज यूजुअली अचीव बाय एयर और वाटर। A further reduction in temperature in the pipe works and the liquid receiver so that refrigerant liquid is subcooled as it enters the expansion device। जैसे जैसे हमारा लिक्विड कंडेंसर से निकलता है एग्जिट पे कैसे फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में क्यों होता है, क्योंकि वो हीट लूज करता है। अगर हीट रिमूव करेगा तो उस फॉर्म में हमारा ये अगले स्टेज में एक्सपेंशन डिवाइस में जाता है। एक्सपेंशन डिवाइस में क्या होता है, एक्सपेंशन डिवाइस में क्या होता है, अ फर्दर रिडक्शन इन टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर और घटता जाता है, हैपेंस इन द पाइप एंड लिक्विड रिसीवर्स सो दैट लिक्विड की हम सब कूलिंग कराते हैं। मतलब लिक्विड को हम और ठंडा कराते हैं एक्सपेंशन डिवाइस के माध्यम से, टेम्परेचर में गिरावट लाते हैं। जैसे जैसे टेम्परेचर गिरता वैसे वैसे प्रेशर गिरता जाता है, और हमारा लिक्विड जो निकलता है कंडेंसर से, उससे एग्जिट से निकलने वाला लिक्विड रेफ्रिजरेंट काफी मात्रा में एक्सपेंशन डिवाइस से जैसे ही पास होता है कूलिंग का रेट बढ़ा देता है, और कूलिंग हमारी हायर रेट पे बढ़ जाती है। आगे डिस्कस करते हैं। एक्सपेंशन डिवाइस से निकलने के बाद हमारा लिक्विड रेफ्रिजरेंट कहां पास होता है, दोबारा पास होता है या के एक्सपेंशन डिवाइस में, एक्सपेंडर के थ्रू एक्सपेंशन होता है और फिर से लिक्विड। इस प्रकार ये पूरी एक साइकिल चलती रहती है और हमारी रेफ्रिजरेटर में कूलिंग मिलती रहती है। सेम प्रोसेस है। आगे बढ़ते हैं। ये वही फिगर है जो अभी हमने आपको सिंपल वेपर कंप्रेशन साइकिल में समझाया था, बस इसमें थोड़ा सा एडवांस फिगर दिया हुआ है कि अगर हम प्रेशर भी बता रहे हैं तो किस पॉइंट पे हमारा हाई प्रेशर होगा, किस पे लो प्रेशर होगा, एक्सपेंशन में कहाँ क्या है, रिसीवर डिवाइस में क्या लगा होता है, रिसीवर डिवाइस किस तरह ऑपरेट करता है, ये बातें आगे आने वाले लेक्चर्स में करेंगे। आज का हमारा यही उद्देश्य था कि आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दें कि हमारा रेफ्रिजरेशन सिंपल वेपर कंप्रेशन साइकिल में कैसे कैरी आउट करता है, कौन सा प्रशीतक हम यूज करते हैं, और क्या हमारा सीओपी। देखिए एक चीज आपको बताता हूं, ये जो अभी स्किप कर रहा हूं ये पार्ट नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूंगा। देखिए कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस की बात करें, जो हमारा निष्पादक गुणांक होता है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, वो हमारा इस साइकिल में एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल की तुलना में काफी हाई निकल के आता, काफी अच्छी वैल्यू आती है निकल के। मतलब सीओपी की वैल्यू अगर एक रेफ्रिजरेटर की, एक फ्रिज की सीओपी की वैल्यू हाई है, जो आप नेचुरल घरों में, घरेलू उपयोग, डोमेस्टिक यूज में और इंडस्ट्रियल औद्योगिक क्षेत्रों में इस्तेमाल कर रहे हो, तो हमें चाहिए भी तो यही ना कि अगर रेफ्रिजरेटर आप यूज करोगे अपने घर में तो क्या काम है कि भैया अच्छी से अच्छी कूलिंग इफेक्ट हमें दे, तो वही काम तो ये हमारा वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम कर रहा है। बस क्या है, जो हमारा एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम था वो नेचुरल वातावरण की वायु को यूज कर रहा था प्रशीतक के तौर पे, लेकिन आज के समय में जो हम प्रशीतक यूज करते हैं वो फ्रीऑन 12 फैमिली के डेरिवेटिव होते हैं। R22 आपने बहुत नाम सुना होगा। इसी प्रकार से कई सारे जियोट्रोपिक, एजियोट्रोपिक, R सीरीज, 700 सीरीज, 400 सीरीज, 500 सीरीज के रेफ्रिजरेंट यूज करते हैं। क्लोरीन, फ्लोरीन का उनमें कंपोनेंट मिला होता है, हेलोकार्बन रेफ्रिजरेंट होते हैं, और ये सभी मिलके जब जो भी प्रशीतक आप यूज कर रहे हो इस साइकिल में, वेपर कंप्रेशन है। वेपर कंप्रेशन में देखिए अंतर क्या है, प्रशीतक अलग है, वेपर कंप्रेशन में लगने वाले पार्ट अलग हैं, और वेपर कंप्रेशन साइकिल से हमें निष्पादक गुणांक, गुणवत्ता, जिसको आप हिंदी में मतलब एक इंजन के रिस्पेक्ट में एफिशिएंसी कहते हो, एक रेफ्रिजरेटर के रिस्पेक्ट में निष्पादक गुणांक कहते हो, उसकी वैल्यू काफी हाई आती है। निष्पादक गुणांक हाई आ रहा है मतलब ये रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट जो लिखा है फॉर्मूला में साहब, ये इसकी वैल्यू हाई आ रही, मतलब कूलिंग रेट ज्यादा हो रहा है, और यही तो हमें चाहिए, डिजायर्ड है कि हाई कूलिंग रेट हो।
तो ये हमारा पूरे साइकिल की एफिशिएंसी को बढ़ाता है एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम के रिस्पेक्ट में। ओके, इट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे एंड आई वुड लाइक टू सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अगला लेक्चर हम डिस्कस करेंगे कैसे हमारा कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस बढ़ता है, क्या फैक्टर्स हैं, हम वीसीआरएस साइकिल की एफिशिएंसी मतलब सीओपी जो है और किन फैक्टर्स के रिस्पेक्ट में बढ़ा सकते हैं, प्रेशर बढ़ाने से, टेम्परेचर बढ़ाने से, सब कूलिंग करने से, क्या फैक्टर हैं जो हमारे डिपेंडेंट है सीओपी बढ़ाने और घटाने में एक वीसीआरएस साइकिल की, हम आने वाले लेक्चर्स में बात करेंगे। जिस प्रकार आपको हमने बताया था थर्मोडायनेमिक्स में स्टीम टेबल देखते थे ना आप लोग, इसी प्रकार यहां रेफ्रिजरेशन चार्ट देखा जाता है। पीएच डायग्राम, प्रेशर एंथैल्पी कर्व से रीडिंग ली जाती है। प्रेशर एंथैल्पी कर्व बनाते कैसे हैं, ठीक है, टीएफ डायग्राम, पीवी डायग्राम पे कैसे प्लॉटिंग होती है प्रेशर और टेम्परेचर की, लेकिन जो मेन है यहां पे हमारा रेफ्रिजरेशन में वो प्रेशर एंथैल्पी डायग्राम चलता है, पीएच डायग्राम। पीएफ डायग्राम के माध्यम से रेफ्रिजरेशन चार्ट हम कैसे देखते हैं, रेफ्रिजरेशन चार्ट से रेफ्रिजरेशन टेबल से हमें वैल्यू कैसे मिलती है, कैसे हम उससे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, इन पर डिस्कशन आने वाले लेक्चर्स पे करेंगे। ठीक है, ये आज के लिए केवल आपके लिए ब्रीफ इंट्रोडक्शन था कि हमारा जो वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम है ये कार्य कैसे करता है, इसके कार्य करने की विधि क्या है, इसमें क्या क्या कंपोनेंट लगते हैं और इसको हम क्यों यूज में लेके आए। लेकिन हाँ, ये हमेशा ध्यान रखिएगा ये वातावरण के लिए बहुत नुकसानदेह होता है। क्यों? क्योंकि आपने सुना होगा ज्यादा ज्यादा एसी, ज्यादा ज्यादा रेफ्रिजरेटर यूज करने पे क्लोरोफ्लोरोकार्बन रिलीज होता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन रिलीज हमारा वातावरण के लिए नुकसानदेह है, ओजोन लेयर को हानि पहुंचाता है। ठीक है, लेकिन ये साइकिल ह्यूमन कंफर्ट के लिए अच्छी है। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ज्यादा है, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट ज्यादा है। ठीक है, इसलिए इसको हम यूज करते हैं एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल के रिस्पेक्ट में। ओके, थैंक यू।